سالار شاہ، میں ایسا کیا کروں میرے یار کے غزلان شاہ آج پھر اس روم میں آیا تھا جہاں ان تینوں دوستوں کی یادیں بسی تھیں۔ وہ سامنے ایک ہنستے مسکراتے خوبصورت چہرے سے مخاطب ہوا۔ وہ جب بھی اس روم میں آتا تو اس پیر غزلان شاہ کو اس روم کے باہر ہی چھوڑ کر آتا جو باہر والوں کے لیے ایک نرم خوشیاں پھیلانے والا تھا۔ وہ یہاں اندر داخل ہوتے ہی وہی غازی بن جاتا جو سالار اور شہری کے لیے تھا۔ غسیل، سنجیدہ، شاہ حویلی کا سب سے خوبصورت مرد تھا وہ، اور اسی خوبصورتی کی وجہ سے وہ اپنے بھائیوں جیسے دوستوں کو کھو بیٹھا۔ وہ میرے دل اور دماغ سے نکل جائے میرے یار، تم تو مجھے اچھے سے جانتے ہو کہ میں اپنی زبان کا کتنا پکا ہوں۔ تصویر کو اپنی سیاہ آنکھوں میں بے شمار نمی لیے دیکھتے وہ کہنے لگا، جو وعدہ میں نے ہم دونوں کے جگر سے پیارے بھائی شیری سے کیا تھا، اس وعدے کو میں کبھی نہیں توڑ سکتا۔ بے بسی سے اس تصویر کے سامنے نیچے گرتا، وہ ہاتھوں کو چہرے پر رکھ کر زور سے روتے ہوئے کہنے لگا، اس روم سے باہر کسی کی آواز نہیں جا سکتی تھی کیونکہ یہ روم ساؤنڈ پروف تھا، اور اس روم کی سیٹنگ اس نے اس طرح سے کروائی تھی کہ جب بھی اسے رونا آئے تو وہ اپنے دوست ماموزاد بھائی کے آگے روئے۔ سالار شاہ، تم بھی تو سخت دل نکلے یار، ایسا کون کرتا ہے؟ ہاں، کون اپنے بھائی کو چھوڑ کر جاتا ہے بھلا؟ کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالی تم نے اس رات؟ کیوں؟ ہاں بتاؤ۔ وہ رو رہا تھا کہ یکدم اس کو اپنی نظروں کے آگے اس رات کی جھلکیاں دکھائی دینے لگی۔ وہ حویلی کے سبز باغ میں خود کو تصور کرنے لگا جہاں سالار شاہ کے بے جان وجود کو اپنی گود میں دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا اور اپنے سفید ہاتھ اوپر اٹھا کر نم آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا تو ہاتھوں میں اپنے جگر کے خون لگے اس جنوری کی پہلی رات کی طرح نظر آئے ہاتھ۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ ماضی کی ایک جھلک دیکھ شدت سے رونے لگا۔ اس خوبصورتی کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہوئے تھے نا سالار شاہ، اس خوبصورتی کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے اس خوبصورت چہرے کو نوچ کر بدصورت بنا دوں، اپنی اس سفید چمڑی کو جلا کر رکھ دوں۔ پورا کمرہ اس کی گونجدار سسکیوں سے گونج اٹھا۔ وہ فرش پر سر پٹک پٹک کر مارتا بری طرح رو رہا تھا۔ وہ اپنے خوبصورت چہرے کو جنونیت سے نوچ رہا تھا، اپنے سفید مردانہ ہاتھوں کو کاٹ رہا تھا۔ جب بھی وہ اس حال میں ہوتا یہی سب کرتا۔ اپنی خوبصورتی سے اسے شدید نفرت ہوتی تھی۔ اس تکلیف دہ لمحے میں اس کا دل خود کو ختم کرنے کا شدت سے چاہتا، لیکن سامنے دیوار پر لگی سالار شاہ کی تصویر دیکھ وہ یہ گناہ کر نہیں پاتا تھا۔ دستگیر شاہ آج بھی ہمیشہ کی طرح ٹھیک 5 بجے اٹھا۔ وہ اس وقت ہمیشہ نماز کے لیے اٹھتا تھا اور نماز پڑھنے کے بعد واپس سو جاتا، لیکن آج اپنی آنکھوں میں اپنی بیوی سے ملنے کی چمک وہ کب سے تیار ہو رہا تھا۔ اب صبح 7 بجتے ہی علی سے پہلے ہی گھر سے باہر نکلا اور گاڑی میں جا بیٹھا۔ علی جب وہاں آیا تو اس کے چہرے پر خوشی دیکھ نفرت سے اپنی مٹھیاں کسنے لگا۔ وہ ہمیشہ اسے اتنا خوش دیکھتا تو اپنے اندر نفرت کی آگ بھڑکتے محسوس کرتا۔ شاہ سائیں، آپ اپنا بیگ بھول رہے ہیں۔ اسکول کے گیٹ کے آگے جب گاڑی رکی تو وہ اپنا بیگ لیے بغیر تیزی سے گاڑی سے نکل رہا تھا جب علی شاہ نے آنکھوں میں سرد مہری لیے بظاہر مسکرا کر کہا، میں بھول گیا۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھا اور اپنا سیاہ بیگ اٹھا کر اپنی مضبوط کندھوں پر لٹکاتا آگے بڑھا۔ تبھی علی شاہ تیزی سے باہر نکلا اور اس کے پیچھے بڑھا۔ کیا بات ہے، آج تو ہمارے سائیں بڑا مسکرا رہے ہیں۔ علی شاہ کے شریر لہجے نے اسے سختی سے گھورنے پر مجبور کیا۔ کوئی خاص بات نہیں، تم جاؤ کلاس میں آتا ہوں۔ اس کی بے تاب نظریں مہروسہ کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ علی شاہ سے کہہ کر وہ اپنی نظریں ارد گرد دوڑانے لگا۔ تبھی اسے وہ نظر آئی جو پہلی کلاس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اپنا بیگ درست کرتا وہ اسی کی جانب تیزی سے بڑھنے لگا۔ کل ایسا کیا ہوا تھا جو یہ اتنا خوش ہے؟ میں نے کل لسٹ اس لیے تو نہیں بدلی تھی کہ دستگیر شاہ تم اس گاؤں سے واپس آ کر اتنے خوش ہو جاؤ۔ میں نے تو وہاں تمہیں مرنے کے لیے بھیجا تھا۔ میں تمہیں مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا اور تمہاری محبت کی عزت کو تار تار ہوتے ہوئے، جیسے اس کے ساتھ ہوا تھا 1 سال پہلے جو ہمارے بڑوں کی غلطی کی وجہ سے مری تھی۔ علی شاہ کی نفرت بھری سرخ آنکھوں نے دستگیر شاہ کا پیچھا کیا جو اب مہروسہ کے پاس پہنچ چکا تھا۔ دوسری طرف دستگیر شاہ مہروسہ کے پاس پہنچ کر مسکراتے ہوئے اسے سلام کرنے لگا۔ مہروسہ شاہ کو اسے اپنے قریب دیکھ کر 2 دن پہلے والے واقعے کی شدت سے یاد آئی تو غصہ اور شرمندگی اس کے چہرے پر جھلکا۔ مٹھیاں غصے سے اس نے بھینچی تھیں۔ کیسی ہیں استانی جی؟ اور آپ 2 دن سے کہاں غائب تھیں؟ میں نے آپ کو بہت مس کیا تھا۔ کیا آپ نے بھی ہمیں، اپنے شوہر کو مس کیا ان 2 دنوں کی دوری کو محسوس کر کے؟
जिगर जिगर करती स्याह आंखों में दुनिया जहान की मोहब्बत समेटे महरोसा शाह से बोझल आवाज़ में वो पूछ रहा था। शट अप, अपनी बकवास बंद करें दस्तगीर शाह, और छुट्टी होते ही आप स्कूल से निकलने से पहले मुझे तलाक देकर बाहर निकलेंगे, वरना केस कर दूंगी मैं आप पर। वो उन पैसों की वजह से उससे अब और ज्यादा बदगुमान हो चुकी थी। सख्त लहजे में उसे कहती वो देखने लगी, जो तलाक की बात पर गुस्से से अपनी रगों में खून को गर्म होते शिद्दत से महसूस कर रहा था। शदीद गुस्से के आलम में उसको स्कूल के बीचों बीच कलाई से पकड़ता वो उस जानिब बढ़ा जहाँ सीढ़ियाँ थीं। दस्तगीर शाह, छोड़े हमें। वो उसे लिए ऊपर बढ़ा और उसे उस जगह पर लाया जहाँ काफ़ी अंधेरा था। वो उसे एक दीवार से पिन करता गुस्से से दोनों मजबूत हाथ उसके दाएं बाएं जानिब रखकर अंधेरे का फायदा उठाकर उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए बोला, आपने हमें समझ क्या रखा है? हाँ, आप जो मर्जी आए बोल देंगी हमें। उस रात हमने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया था। अगर ज़बरदस्ती की होती तो आपको हक था हमें बुरा भला कहने का, लेकिन उस रात हमने आपकी इजाज़त से सब किया था, कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई थी। फिर क्यों बार बार आप तलाक का जिक्र छेड़कर हमें गुस्सा दिलाती हैं? क्यों हम पर आप अपना रौब जमाती हैं? मैं सिर्फ आपसे 1 साल छोटा हूँ, 10 साल नहीं। दस्तगीर शाह ने अचानक उसके शानों से दबोच कर गुस्से से घुर्राते हुए कहा। तभी वो अचानक से अपने हाथ उसके नाजुक हाथ के नीचे रखकर बेखुदी से सरकाने लगा। महरोसा शाह, आप सिर्फ और सिर्फ दस्तगीर आलम शाह की हैं। तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक आप ये बात समझ नहीं जाएंगी। प्लीज़ दस्तगीर शाह, फिर से ये सब मत की। गजलान शाह जब थका हारा अपने बेडरूम में दाखिल हुआ तो सामने बेड पर इतनी सारी किताबों को देख तीखी नज़रों से उसे घूरने लगा। जो दोनों पैर बेड ग्राउंड के ऊपर रखे, सर दूसरी जानिब किए लेटी, पास प्लेट से सेब उठाकर मुंह में लेती मगन अंदाज में एक किताब पढ़ रही थी। वो उसे 3 दिन के बाद देख रहा था। इतने दिनों बाद उसे देखकर आंखें चमक उठी थीं, वरना वो यहाँ गजलान शाह के बेडरूम में अपने एक्सीडेंट और उसको अपनी और उसकी उस खूबसूरत रात के बहकते लम्हों को ख़राब करने की वजह से नाराज़ थी। इसीलिए वो उसके रूम में नहीं आ रही थी और ना ही उसके करीब भटक कर उसे तंग कर रही थी। मगर आज सुबह उसे सही सलामत इतने दिनों बाद गजलान शाह अपने बेड में देखकर दिल में एक पुरसकून ठंडक को उतरता महसूस कर रहा था। शाह साईं, आप आ गए। वो जब बेड के पास आ खड़ा हुआ तो उस पर नज़र पड़ते ही वो अपनी नाराज़गी को भूल भाल चहकती हुई उठी और उसके गले का हार बनने ही वाली थी कि उसका उंगली के इशारे से उसे पीछे रहने का कहने पर वो मुंह बिसोर कर पीछे हुई। पीछे हटो लड़की, यह हरकत हमें बर्दाश्त नहीं होती। उंगली से उसे पीछे रहने का कहता वो उसको घूरने लगा, जो सफ़ेद तंग सी सुर्ख शर्ट और ब्लू पैंट में मलबूस उसके सामने निहायत ही आराम से उस बेबाक हुलिये में खड़ी उसे फिर से भटकाने लगी। शाह साईं, अब तो आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, वरना हम सफ वबाले जान बनकर आपकी ज़िंदगी को सुकून से नहीं रहने देंगे। वो बेबाकी से अचानक ही आगे बढ़ी और सेब का एक टुकड़ा ज़बरदस्ती गजलान के मुंह में डालती एक आंख शरारत से दबाकर उसके गले पर दोनों हाथ रखकर उसकी चमकती स्याह आंखों में देखने लगी। गजलान शाह सख्त शुष्तर रह गया और फिर शदीद गुस्से से उसे पीछे करके खुद उससे दूर हुआ। गुस्ताख लड़की। गजलान शाह उसकी बेबाकी पर नर्वस होता उसे झटके से पीछे करता सेब निकलते हुए शदीद गुस्से से बोला, नहीं, मैं तो बहुत क्यूट हूँ, प्यारी सी लड़की हूँ, अपने पीर साईं की बीवी भी हूँ और मोहब्बत भी। शरीर लहजे में कहती वो फिर से आगे बढ़ी, लेकिन उसके पीछे बेड की जानिब इशारा करने पर वो पीछे हटी। ये सब क्या है चरी, पागल लड़की? सख्त नज़रों से किताबों को घूर कर वो उससे पूछने लगा। किताबों पर मुस्कुराती लड़की की तस्वीर उसे सख्त नागवार लग रही थी। आज से पहले इस तरह की किताबें उसके बेडरूम में क्या, पूरी हवेली में किसी ने नहीं लाई थी, मगर ये लड़की उसके सब्र का इम्तहान ले रही थी, कुछ नया करके हर वक्त। शाह साईं, ये मेरी जान से अजीज़ तरीन नावल है। खबरदार जो आपने इन पर बुरी नीयत से हाथ लगाया। प्यार से नावल के रिसालों को देखती आखिर में उंगली उठाकर उसे वार्निंग देने से वो बाज नहीं आई, जबकि उसकी नज़रों में उन किताबों के लिए इतना प्यार देख न जाने क्यों पीर साईं को आग लगी। हम किसी नामहरम को देखना भी नहीं चाहते, हटाएं इन सबको, हमें सोना है। नागवारी से डाइजेस्ट को देखकर सख्त नज़रों से नूरे हरम को खूबसूरत चेहरे को देखते उसने कहा, अच्छा करते हैं आप शाह साईं,
किसी नामहरम को ना देखकर, वरना अगर ये हरकत आप में पाई जाती ना तो अल्लाह की कसम मैं उस चुड़ैल के साथ आपको भी गंजा कर देती। फाड़ खाने वाले अंदाज में कहती वो गुस्से से अपने सभी डाइजेस्ट उठाते हुए बोली। उसे मुंह चिढ़ाते हुए वो वहाँ से निकली, जबकि गजलान साईं जिंदगी में आज पहली बार मुस्कुरा उठे। गजलान अपने कमरे में उस आफत की पुड़िया को ना देख पुरसकून महसूस करने लगा, वरना वो उसकी मौजूदगी में अपने नफ्स पर काबू नहीं पा सकता था। वो उसके करीब आकर उसे बहकाने पर मजबूर करती थी, और अभी अपने एक मुरीद के बेटे की शादी से वो होकर आया था। उस वक्त रात के 1 बज रहे थे। वो सामने रखे सोफे की जानिब बढ़ा और अपनी पगड़ी सर से उतारे बगैर सोफे पर बैठा और सोफे की पुष्ट से टेक लगाकर आंखें मूंद गया। कुछ देर उसी तरह आंखें मूंदे पड़ा रहा। तभी अपने बालों में किसी की नर्म उंगलियों को सरकते महसूस करता वो पुरसकून से अपने पहलू पर बैठी नूरे हरम की गोद में बेसाख्ता अपना सर रख गया। पीर साईं आप बहुत थक गए हैं। नूरे हरम उसे अपनी गोद में सर रखे देख अपने लबों पर एक शरीर मुस्कुराहट सजाकर अपने लहजे में झूठ मूठ का प्यार समोती कहती सामने टेबल पर रखे प्याले को उठाकर उसे देखने लगी। आप मेरे हाथों के जादू को देखना पसंद करेंगे? देखिएगा, बहुत जल्द फ्रेश फील करेंगे। वो उसकी गोद पर सर रखे आंखें मूंदे हुए था। उसकी नज़रें उसके सर पर बंधी पगड़ी पर जा रुकी तो उसने वो प्याला वापस सामने टेबल पर रखा और अपने नाजुक हाथों से पगड़ी को उतारकर सामने टेबल पर रखती वो प्याली उठाकर उससे कहने लगी। गजलान शाह उसकी गोद में सर रखे सोफे पर फैला हुआ था। अचानक अपने नथनों में पेट्रोल की स्मेल से वो चौंका और फिर झटके से उठा। लड़की दिखाओ हमें, ये क्या है? अचानक उसके चौंक कर उठने पर नूरे हरम ने सोफे से तेजी से उठ खड़ी हुई और उससे दूर होकर प्याली तेजी से अपने पीछे करती लबों पर एक मुस्कुराहट सजाकर उसे देखने लगी, मगर पीर साईं के आगे बढ़ने पर वो अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाने लगी और उसके सवाल पर वो उस प्याली पर अपनी गिरफ्त सख्त कर गई। पीर साईं तेल है और क्या हो सकता है? वो उसकी स्याह आंखों में गुस्सा देखती चहकते हुए बोली। अगर ये तेल है तो आप छुपा क्यों रही हैं हमसे? दिखाइए हमें। गजलान शाह को शक हुआ था, क्योंकि वो इतनी प्यारी तो कभी नहीं थी जो आज बनने की कोशिश कर रही थी। हो ना हो उसके दिमाग में एक शैतानी मंसूबा तो ज़रूर चल रहा होगा जिसे आज वो उस पर आजमा कर खुश होना चाहती थी। पीर साईं आप अपने मजबूत बॉडी को जिस तरह से मेंटेन रखते हैं ना, उसी तरह आपको अपने बालों का भी ख्याल रखना चाहिए। उन्हें भी वर्जिश की ज़रूरत है, जो मैं आज तेल की मालिश करके थोड़ा सा वर्जिश करवा रही थी। और आप हैं कि हमेशा की तरह मुझ पर शक कर रहे हैं। वो दीवार से लगकर उसके सामने आने पर पीछे प्याले पर गिरफ्त मजबूत करती सख्ती से आंखें मीचती डरते हुए बोली। अगर आपको हमारी इतनी ही फिक्र है तो क्यों वो प्याली हमसे छुपा रही हैं जिसमें आप मालिश के लिए तेल डालकर लाई हैं? गजलान साईं ने संजीदगी से कहकर अपना एक हाथ दाएं जानिब उसके नाजुक कंधे पर दीवार पर रखा और दूसरा हाथ पीछे बढ़ाकर उसकी नाजुक कलाई को दबोच कर आगे करते वो उसे देखने लगा, जो उसके इस तरह छूने पर आंखें फाड़े उसे देख रही थी। पीर साईं आप सामने से तो मुझे और भी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। मेरे पास अगर इस वक्त मेरा फ़ोन होता तो मैं ज़रूर आपकी सेल्फी लेती, लेकिन आप इतने जालिम हैं कि मेरी हर उस चीज़ को मुझसे छीनते हैं जो मुझे पसंद आती है। मैं आपको उसकी सज़ा देना चाहती हूँ, वो भी अभी। ये कहती वो अपने पैर उठाकर अचानक उसकी तरफ बढ़ी, जबकि उसकी इतनी बेबाकी पर गजलान साई की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो ये तक भूल गया कि वो क्या कह रहा था या उसने अभी क्या कहना था। गुस्ताख बेशरम लड़की, अपनी हदूद में रहो, क्योंकि अभी आप हमारे माजी से अनजान हैं। अगर आपको पता होता कि माजी में हम क्या थे तो आप इतनी दलेरी से हमारे साथ ये सब ना करती। वो गुस्से से उसके नाजुक कंधे को सख्ती से पकड़कर उसे पीछे धकेलने वाले अंदाज में कहता, सख्त गुस्से की लहर को अपने पूरे वजूद में दौड़ते शिद्दत से महसूस करता सर्द लहजे में बोला। पीर साईं क्या थे आप उस टाइम? कहीं आप एक बिगड़े हुए वडेरे तो नहीं थे? पक्का आप ऐसे ही थे, और आपकी कोई गलती करने की वजह से आपके ख़ानदान वालों ने आपको ये सज़ा दी होगी। पीर के तख्त को आप सज़ा समझते हैं ना अपने लिए? वो उसकी आंखों में देखती पहले तो शरीर लहजे में बोली, मगर उसकी आंखों में सुर्खी देखती संजीदगी से अपने आखिरी लफ्ज़ों को कहने लगी, मगर यकदम से उसके चेहरे पर गुस्सा अपने चेहरे के करीब तर लाने पर वो दीवार से टकराकर अपनी आंखों को सख्ती से मीच गई। आप हमारे माजी को मत ढूंढे, वरना आप भी हमसे बागी हो जाएंगी। मेरे ख़ानदान के एक शख्स की तरह जो कभी हमारा जिगर हुआ करता था। लफ्ज़ों में दर्द था लेकिन लहजे में सर्दपन। वो उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा किए उसी को ही देख रहा था।
उसके गुलाबी चेहरे को देखते यकदम न जाने क्यों उसका दिल चाहा कि वो अपना गम, अपना माजी भूल कर उस चेहरे को बगैर पलकें झपकाए देखे, उस छोटी सी लड़की को खुद से लगाकर अपना सारा गम भूल कर पुरसकून हो जाए। लेकिन वो चाहकर भी ये सब नहीं कर सकता था। वो अपने वादे से नहीं मुकर सकता था। अपने उस माजी में किए गए गलती को वो कैसे फरामोश कर सकता था, जिस पर वो बहुत पशेमान था। हाँ, गलती उसने की थी, मगर जो उसने गुस्से में किया था वो तो शाह हवेली के लिए सख्त साबित हुआ। शाह जी, आप क्यों हमसे वो बात छुपा रहे हैं जो आपको बहुत तकलीफ़ देती है? प्लीज़ आप अपनी तकलीफ़ को भूलकर मेरे साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। मैं आपको बहुत ज़्यादा खुश कर दूंगी। आप मेरी कुर्बत में अपने तकलीफ दे माजी को भूल जाएंगे। सिर्फ एक बार मेरा हाथ थाम कर तो देखे ना। वो अचानक ही उसकी पूंछ से लगकर रोते हुए बोली, नहीं, हम ये नहीं कर सकते। आप खुदा के लिए हमसे ये उम्मीद मत लगाएं, वरना आपको तकलीफ होगी। हम आपको वो सब नहीं दे सकते जो आप उम्मीद लगा कर बैठी हैं। उसके हाथ को हटाकर वो आगे हुआ तो वो लड़की तड़प कर वापस उसकी पुश्त पर अपना सर रख गई। शाह साईं, प्लीज़, वो नम आवाज़ में बोली तो गजलान शाह उसके आंसू अपनी पुश्त पर महसूस करके बुरी तरह तड़पता उससे दूर जा खड़ा हुआ और नफ़ी में सर हिलाने लगा। नहीं, हमने कहा ना, हमसे उम्मीद मत लगाएं। चली जाएं वापस अपने रूम में। अब और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते आपको यहाँ अपने पास। वो अपने आंसुओं को गिरने से रोके हुए था, वरना सामने खड़ी लड़की की तड़प और तकलीफ से वो अपना जब्त खोता महसूस कर रहा था। ये मेरा रूम भी है, नहीं जाऊंगी मैं। आपकी बीवी हूँ मैं, आप पर हक रखती हूँ। आप इस तरह से मुझे नहीं रोक सकते। नहीं, नहीं समझता मैं आपको अपनी बीवी। हमने ये निकाह आपके बाबा के बेहद इसरार पर किया था, अपनी रज़ा से नहीं। हम आपको सिर्फ अपने मुरीद की बेटी समझते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। चली जाइए हमारे रूम से। उसे गुस्से से खुद से दूर करता वो शिद्दत से फट पड़ा तो वो उसे इतने ज़्यादा गुस्से में फटी आंखों से देखती, अपना सर नफ़ी में हिलाती कदम पीछे ले जाने लगी। फिर आंसू बहाती वो वहाँ से भागी तो उसके रूम से निकलते ही गजलान शाह पीछे बेड पर गिरा और खामोशी से आंसू बहाने लगा। माजी गाजी, ये तो चीट है, हम इसे नहीं मानते। एक स्याह घोड़ा जस लगाकर अपने आगे बढ़ते सफ़ेद और ब्राउन रंग के घोड़ों से आगे बढ़ा और दूर जाकर रुका तो घोड़े के रुख बदलने पर घोड़े पर बैठे नौजवान का संजीदा चेहरा नजर आया, जो बहुत खूबसूरत था और दूध की तरह सफ़ेद और सेब की तरह सुर्ख, जो अब धूप और गर्मी की वजह से मज़ीद सुर्ख हो चुका था। सालार आकिब शाह, ये चीटिंग नहीं, ये अल्लाह की जानिब से एक गॉड गिफ्टेड जहानत है जो मुझे यानी सैयद गजलान गनी शाह को मिला है। वो नौजवान स्याह आंखों में फतह की सुर्खी लिए उन दो घुड़सवारों को जताती नज़रों से देखने लगा। सालार साईं, ये हमेशा यही करता है, मुझे कभी नहीं रेस लगाना इस खड़ूस शाह के साथ। शहरियार बख्त ने सामने खड़े घोड़े पर बैठे नौजवान को देखते कहा तो वो अपना घोड़ा बिल्कुल उसके करीब लाकर उसके आगे झुका। क्यों शहरी, अपनी पॉकेट मनी खोने से डर रहे हो? वो नौजवान सिर्फ उन दोनों से ही इस तरह शरारत भरी बातें किया करता था, वरना हवेली में वो एक नंबर का खड़ूस माना जाता था, जिसका गुस्सा हर वक्त हर किसी पर निकलता था, हर वक्त गुस्से से पागल होकर अपना नुकसान करता था। और यही चीज़ सैयद अब्बास शाह को डराती थी। उन्हें अपने पोतों से भी ज़्यादा अपने इस नवासे से मोहब्बत थी, जो उनकी बेटी हलीमा शाह की आखिरी निशानी था। गाजी, पॉकेट मनी से नहीं, तुम्हारी चीट करने वाली आदत से डरता हूँ। शहरियार बख्श शाह ने संजीदगी से कहकर अपना घोड़ा भगाया तो वो भी अपना स्याह घोड़ा उसके ब्राउन घोड़े के पीछे भगाने लगा और उसके करीब पहुंचकर उसे देखते मुस्कुराने लगा। इस तरह मुस्कुराने पर उसके दोनों गालों में से एक पर डिम्पल नमूदार हुआ, जो उसकी वजाहत में और भी इजाफे का बाइस बना। शरी मेरे यार, तुम अपनी पॉकेट मनी मुझे दिए बगैर ऐसे तो नहीं भाग सकते। रुको। वो शहरियार को आगे जाते देख गुस्से से चीखा तो सालार शाह उसके गुस्से पर मुस्कुरा कर रह गया। वो अच्छे से जानता था कि अब शहरियार शाह वक्त ज़रूर रुकेगा, क्योंकि वो गजलान शाह के गुस्से से सख्त डरता था। वजह वो उसकी एक हफ्ते तक नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो जब भी गुस्से में बात नहीं मानता था गजलान शाह की, तो वो पूरे एक हफ्ते तक उससे बात ही नहीं किया करता था, बल्कि उसकी शक्ल तक नहीं देखता था। और शरी इसीलिए उसके गुस्से से डरता था। मेरे यार, मेरे गाजी, गुस्सा मत कर, मैं रुकता हूँ। ये देखो, घोड़े से नीचे भी उतर रहा हूँ। शहरयार बख्त शाह ने घोड़े का रुख उसके घोड़े के आगे किया और हाथ उठाकर नीचे कूदा और हंसते हुए बोला,
شہری میرا موڈ ابھی سخت خراب ہو گیا ہے، جاؤ میرے لیے وہ چیز لے کر آؤ جس سے مجھے سب سے زیادہ عشق ہے۔ وہ سیاہ گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے سنجیدگی سے بولا تو شہریار بخش شاہ اور سالار عاقب شاہ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور جیب سے دونوں نے ایک ایک سگریٹ کے پیکٹ کو نکالا۔ ہمیں اچھے سے پتہ ہے ہمارے جگر کو کس چیز سے پہلی نظر میں سب سے زیادہ عشق ہوا ہے، غازی میرے یار، وہ چیز یہ تو نہیں کہیں؟ دونوں اپنے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر سگریٹ کا پیکٹ غزلان شاہ کے آگے کرتے ہوئے بولے، جو اپنے گھوڑے پر سوار اپنا رخ دوسری طرف کیے کھڑا اس وقت ایک مصری حسن کا مالک شہزادہ لگ رہا تھا۔ کیا یار، تم لوگ اتنے پیار سے مناتے ہو کہ بندہ اپنا غصہ تک بھول جاتا ہے، غزلان شاہ نے یکدم سے نیچے اترتے نرمی سے کہا۔ ہمیں پتہ ہے کہ تم کیوں اتنی جلدی مان رہے ہو غازی، ہمارا یار، ہمارا جگر، ہم تیری رگ رگ سے واقف ہیں۔ تجھے تب اپنی محبوبہ کی شدید طلب ہوتی ہے جب تو اس طرح کی گھوڑ ریس کا پلان بناتا ہے۔ شہریار بخش نے سگریٹ کو اس کی محبوبہ سے تشبیہ دیتے معنی خیزی سے کہا۔ غزلان شاہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی ایک آنکھ دبا کر اس کے ہاتھ سے آدھا جلا ہوا سگریٹ پکڑتا پینے لگا، پھر شہری کو سگریٹ پکڑا کر سالار شاہ کے ہاتھ سے اسی طرح اس کی جلائی سگریٹ کو پکڑ کر پینے کے بعد اب خود پیکٹ سے ایک سگریٹ نکال کر جلا کر باری باری اس طرح دونوں کو دینے لگا جس طرح اس نے پہلے کیا تھا۔ وہ لوگ اسی طرح یہ کام کرتے یہاں آ کر، کیونکہ غزلان شاہ اپنے نانا سائیں اور شہریار شاہ سالار شاہ اپنے دادا کے سامنے سگریٹ نوشی نہیں کرتے تھے، ڈرتے تھے یہ سب کرنے سے۔ وہ تو ان کے سامنے اتنے شریف بن جاتے کہ ان سے زیادہ شریف کوئی اس گاؤں میں ہے ہی نہیں۔